Hello and good afternoon, everyone. How are you all? I hope all of you are well, all of you are doing well. So, students, yesterday we have started a new chapter of microeconomics. That was chapter number 2, consumer equilibrium, right? We have started with the meaning of utility. We have discussed that we are going to discuss the first approach, cardinal approach to measure the consumer behavior. And in this, we have discussed the meaning of total utility and marginal utility. Now, yesterday we have already discussed how to calculate total utility when marginal utility is given. Today we will learn to calculate marginal utility when total utility is given. Okay, so have a look, everyone. Uh, if this is the question, firstly, we are recalling the calculation of total utility. If quantity is given to you as 1, 2, 3, 4, and 5, and marginal utility is given as 20, 10, 4, 0, and -2, then you all know that total utility will be 20, then 30, then 34. What I am doing, I am simply adding the marginal utilities. Then again it will be 34 and then it will be 32. Now, in case question has given you total utility and it is asking you to calculate marginal utility, कैसे calculation करेंगे देखिए. When I am consuming only one unit of any commodity, then obviously my total utility and marginal utility will be same. जब मैं एक ही यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ तो जितनी भी यूटिलिटी है वही टोटल है और वही एडिशनल है. सो हैव अ लुक, आंसर विल बी 20. नाउ if one unit was giving me a satisfaction of 20 util, whereas 2 units are giving me the satisfaction of 30 util, 2 are giving me a total satisfaction of 30 utils, then this second unit must have given me the satisfaction of 10 utils. कैसे कैलकुलेट किया मैंने? 30 में से 20 को माइनस कर दिया. एक यूनिट ने मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दिया और दो ने मिलकर 30 का दिया. तो ये जो सेकंड वाली यूनिट है ये कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है? 10 यूटिल्स का. चलिए, थर्ड वाली यूनिट कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है देखिए जरा. 2 यूनिट्स का कंबाइंड सेटिस्फेक्शन आपको गिवन है 30 और 3 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन है 34. इट मींस जब मैं थर्ड यूनिट लेके आई तो इसने मुझे सेटिस्फेक्शन दिया होगा 4 यूटिल का, राइट. फिर थर्ड पे भी टोटल है 34 और 4 पे भी टोटल है 34. इट मींस 34 माइनस 34 करूंगी तो यहाँ सेटिस्फेक्शन आ जाएगा 0. और फिर 4 यूनिट्स मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही है 34 यूटिल्स का, वेयर एज जब मैं 5 यूनिट्स पे आती हूँ तो मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन हो जाता है 32. इट मींस फिफ्थ यूनिट ने आपको नेगेटिव एडिशनल सेटिस्फेक्शन दिया. तो देखिए जरा मैंने एमयू का कैलकुलेशन कैसे किया. जो जो टोटल यूटिलिटी मेरे पास अवेलेबल है मुझे उसमें से उसके ऊपर वाली वैल्यूज को माइनस करना है. एक और कैलकुलेशन देख लीजिए. क्वांटिटीज आर गिवन टू यू 1, 2, 3, 4 and 5. Total utility is given to you 16, 22, 26, 26 and 20. चलिए, मार्जिनल यूटिलिटी कौन बता रहा है? Who can tell me the values of marginal utilities? It's quite simple. लॉजिक लगाना है आपको तो. Raise your hands for the answers. Can I say when I consume the first unit of commodity, I receive the satisfaction of 16 utils. Now, while consuming 2 units, I got the total satisfaction of 22. 2 units का 22 है जबकि फर्स्ट का 16 था. तो 22 minus 16 जैसे ही मैं करूंगी I will get this additional utility. It will be 6. Now, my total satisfaction of consuming 2 units was 22, but it increased to 26 when I consumed the third unit. It means third unit has given me the satisfaction of 4 utils. Now, fourth unit haven't given me any satisfaction.
Fifth unit has given me a satisfaction of -6. तो ये मेरा MU का कैलकुलेशन रहेगा. कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला देखिए, MU is equals to change in total utility upon change in quantity. आप देखिए, जब मैं फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट पे आई तो मेरी टोटल यूटिलिटी 16 से 22 हो गई. कितनी यूनिट का चेंज आ रहा है? 6 का. और क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? 1 का. तो 6/1 मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ गई 6. वापस से जब मैं सेकेंड से थर्ड पे गई तो मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई थी 26. कितना चेंज आ रहा है? 4 का. और यहाँ कितना चेंज रहेगा? क्वांटिटी में तो 1 का ही रहेगा, तो अगेन मार्जिनल यूटिलिटी 4 आ गई. There is one more formula for calculating the value of marginal utility, and it is PUN minus PUN minus 1. It means जिस भी नंबर की मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए उस नंबर के सामने वाली टोटल यूटिलिटी लो और उसमें से उसके ऊपर वाली टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दो. If I want to calculate the MU of 6th unit, MU of 6th unit, तो मुझे TU भी लेना है किसका? 6th यूनिट का, और उसमें से माइनस कर देना है TU कौन सा? N-1, यानी 6 - 1 करते ही 5 आ जाएगा. तो यानी मुझे जो यूनिट अवेलेबल है उसकी टोटल यूटिलिटी में से उसके ऊपर वाली टोटल यूटिलिटी को माइनस करना है, so as to get the marginal utility. Now in case any student is having any doubt in case of marginal utility, you can ask me. कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलिए फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए जल्दी से. यू आर सपोज टू रेज योर हैंड्स फॉर आंसर्स. ओके, total utility is given to you. Be quick, everyone. Tell me the values of marginal utility. 30. Tell me the values of marginal utility. Raise your hands for the answers. Okay, very good, very quick. I can see many of the students have raised their hands. Yes, Raghav, I am giving you unmuting rights. Tell me the first value of marginal utility. 12. 12, very good. So I have written 12 over here. Okay, next, Lakshya. Yes, beta. Tell me the value of marginal utility. 8. 8, very good. Yes, Karan Gupta. Ma'am, 5. 5, very good. Chaliye, next. Yes, Varun. Ma'am, 2. 2, very good. Yes, Praveen. प्रवीण कहाँ चला गया? ओके, यस, समरजीत. -4. बच्चा, you are not audible. -4. -4, वेरी गुड. चलिए, तो सभी को कैलकुलेशन आ गया, सभी के आंसर सही आ रहे हैं. इट विल बी 2 ओवर हियर एंड -4 ओवर हियर. तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेशन हमने सीख लिया. अब देखिए बेटा, एक और चीज, काफी बार क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकता है. देखिए कुछ इस तरीके से. इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है. आपको फॉर्मूला यूज करना है. MU is equals to change in total utility upon change in units. Now question can give you values like this. The total utility increases from 20 utils to 38 utils, 20 utils to 38 utils when the
consumer increases the consumption from 4 units to 8 units. From 4 units to 8 units. एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. From 4 units to 7 units. Calculate the marginal utility. बताइए, raise your hands. The total utility increases from 20 units to 38 units when the consumer increases the consumption from 4 units to 7 units. What will be the marginal utility? Yes, Janvi Khatri. 6. 6. How you calculate it? Ma'am, the change in TU is 18 and change in quantity is 3. Okay, so you have, very good. We have to divide the change in total utility with the change in quantity. तो यहाँ तक सबको clear होगा. आगे देखिए बेटा. Now we have already discussed the behavior of MU, right? MU initially decreases, then it becomes 0, and then it becomes negative. तो अब मैं जो आपको टॉपिक करवा रही हूँ, this is the relationship between MU and TU. आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट. क्या समझा रही हूँ मैं आपको? रजिस्टर और पेन लेके बैठिएगा बेटा जी. रिलेशन बिटवीन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे. MU एंड TU, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का कंबाइंड बिहेवियर हमें पढ़ना होता है. हमें पढ़ना होता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन these two utilities. So have a look. अगर मैं टेबल बना के रिलेशन समझूं तो कुछ इस अकॉर्डिंग होगा. आप कोई भी टेबल बना सकते हैं. आप सब मेरे एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हैं जिनको टेबल्स बनानी बहुत अच्छे से आती है, राइट? तो चलिए भाई मुझे बताइए, क्वांटिटी तो मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 एंड 5. MU का जो बिहेवियर मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कोई भी एक MU बनवा दीजिए. कौन बनवा रहा है? यस, पंकज. हाँ जी बेटा पंकज. मैम 1 पे 10 ले सकते हैं. ओके Then 8, ओके. then 6, मैं 6 की जगह 4 ले लेती हूँ क्योंकि मुझे फटाफट इसको 0 तक ले जाना है. again आगे? 4, अगेन 4. ओके. then 1. वेट, 4 नहीं ले सकते ना यहाँ पे, तो मुझे इसको 0 करना पड़ेगा बिकॉज इट इज MU, और मुझे इसको नेगेटिव करना पड़ेगा. क्या ये सही दिख रही है सभी को? मैं यहाँ भी इसको 4 की जगह 3 कर देती हूँ. देखिए मैंने क्या किया, MU को डिक्रीज किया, डिक्रीज करते करते MU को 0 कर दिया और 0 के बाद में MU को नेगेटिव कर दिया. आप सबको पता है, तो आप भी ऐसी कोई टेबल बना लेना जिसमें आपको MU को डिक्रीज करते जाना है, डिक्रीज करते करते उसको 0 तक लाना है और 0 तक लाने के बाद में उसको क्या कर देना है? नेगेटिव कर देना है. अब बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की. हैव अ लुक. It will be 10 over here, then it will be 18, then it will be 21, again 21 and then 19. अब आप इस टेबल को ऑब्जर्व कीजिए. सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा? When MU is falling, जब MU डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे बताइए TU is increasing or decreasing? When MU is falling, TU is increasing या decreasing? क्या विजिबल है आपको? जल्दी बताइए. Okay, I have given you unmute. TU is increasing. Increase, ma'am. Yes, very good. When MU is falling, TU is increasing, but the rate of increase in TU is falling. It means TU increase तो हो रहा है, but हर बार पहले से कम इंक्रीज हो रहा है. आप जरा टेबल में ऑब्जर्व कीजिए. TU शुरू में इंक्रीज हुआ, 0 से 10 तक आया तो 10 का इंक्रीमेंट, फिर 10 से 18 तक आया तो 8 का इंक्रीमेंट, और 8 से 21 तक आया तो सिर्फ 3 का इंक्रीमेंट. यानी TU के इंक्रीज होने की रेट कैसी है? डिक्रीजिंग है. तो मैं एक बार फर्स्ट पॉइंट का सेंटेंस बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. When MU is decreasing, TU increases with the diminishing rate या decreasing rate. TU डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होने की रेट कैसी है? डिक्रीजिंग है. सॉरी, TU इंक्रीज हो रहा है बट इंक्रीज होने की रेट कैसी है? डिक्रीजिंग है.
यानी हर बार पहले से कम इंक्रीमेंट आएगा. इज इट ओके टू एवरीवन? सेकेंड पॉइंट, व्हेन mu is 0, tu is maximum. जब mu 0 हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है. आपने देखा ना mu 0 तो tu मैक्सिमम, जितनी भी टेबल्स आपने बनाई है. नंबर 3, व्हेन mu is नेगेटिव, चलिए बताइए mu नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी के साथ क्या होगा? टोटल Positive. यूटिलिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. बिल्कुल सही, टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट फॉलिंग. जब mu नेगेटिव होगा तो tu विल स्टार्ट फॉलिंग. तो आप देखिए हमने बिना बुक की हेल्प लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया है, द रिलेशनशिप बिटवीन tu एंड mu. 3 पॉइंट्स. व्हेन mu इज डिक्रीजिंग, tu increases with the decreasing rate. Number 2, when mu is 0, देखो मैं लिख देती हूँ, mu falling तो tu इंक्रीज हो रहा है. बट कैसी रेट है? डिक्रीजिंग रेट. रेट का ध्यान रखना है, हर बार पहले से कम इंक्रीज हो रहा है. mu जब 0 है तो tu कैसा है भाई? मैक्सिमम. और mu जब नेगेटिव है तो tu कैसा है? फॉलिंग. tu डिक्रीज होना शुरू होगा. tu नेगेटिव नहीं जा रहा, ठीक है, सिर्फ mu नेगेटिव जा रहा है. आगे इसी को डायग्राम से समझिए. इसका ग्राफ बनाना सीखिए बच्चा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सिर्फ मुझे देखना है मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसा ग्राफ बना रही हूँ व्हाइट बोर्ड पे, वो देखना है. ठीक है, देखिए ध्यान से. आपको अपने फेयर रजिस्टर में ऐसे 2 ब्लैंक ग्राफ्स बना लेना है. चलिए जल्दी बनाइए एक्सेस के साथ, जैसे मैंने बनाए हैं. बी क्विक. ये मैंने ऊपर वाला mu के लिए बनाया है, नीचे वाला मैंने टोटल यूटिलिटी यानी tu के लिए बनाया है. यहां मैंने दोनों में क्वांटिटीज ली है. नाउ हैव अ लुक एवरीवन. mu का बिहेवियर कैसा होता है जल्दी से बता दो. डिक्रीजिंग टू 0 टू नेगेटिव. डिक्रीजिंग 0 नेगेटिव. तो देखो मुझे क्या करना है, टेबल के साथ नहीं बनाना है, मैं तो बिना टेबल के सिर्फ लॉजिकली बना रही हूँ. mu पहले डिक्रीज होता रहेगा, रुकिए, यस, mu विल इनिशियली डिक्रीज, देन इट विल बिकम 0 और 0 के बाद में ये नेगेटिव भी हो जाएगा. तो मैंने ये mu की लाइन बना दी. आप इसको थोड़ी सी फ्लैट भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से. क्या ये तीनों चीजें आ गई? ये जो रेड लाइन है आप देखिए, ये यहां तक तो शो कर रही है दैट mu इज डिक्रीजिंग. ये पॉइंट शो कर रहा है दैट mu इज 0 और इसके बाद में शो हो रहा है दैट mu हैज बिकम नेगेटिव. तो ये मैंने mu वाली लाइन बना दी है. ठीक है, इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने क्योंकि नेगेटिव वैल्यू शो करनी है. नाउ हैव अ लुक एवरीवन व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. आप अपने फेयर रजिस्टर में ये जो आपने mu को जहां 0 किया है, यहाँ स्केल से डॉटेड लाइन बनाएंगे tu वाली जगह और उसको स्टॉप कर देंगे. ऊपर ही स्टॉप कर देना, एरो के आसपास ही. मैंने क्या किया, मैंने जहां mu 0 था वहां से डॉटेड लाइन बनाई और मैंने उसको tu के एक एंगल पे स्टॉप कर दिया. अब ये एरो इरेज कर दो. नाउ हैव अ लुक, बहुत ध्यान से समझिए. जब तक mu डिक्रीज हो रहा है तब तक मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी. तो मैं कैसे डायग्राम बनाऊंगी देखें जरा. वेट फॉर अ सेकेंड. समथिंग लाइक दिस. जब mu डिक्रीज हुआ तो मैंने टोटल यूटिलिटी को इंक्रीज किया. जब mu 0 तो मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम. जैसे ही mu नेगेटिव हुआ आपको इस टोटल यूटिलिटी को यहाँ से डिक्रीज कर देना है. ये नीचे लिख दिया मैंने tu और इसके नीचे लिख दिया मैंने mu. अब जो 3 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए थे उनको जरा डायग्राम पे ऑब्जर्व कीजिए, ग्राफ के ऊपर ऑब्जर्व कीजिए. क्या किया मैंने, व्हेन mu इज फॉलिंग टोटल यूटिलिटी इंक्रीज बट हर बार पहले से कम. When mu is 0, tu became maximum and when mu is negative, tu started falling. तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं. यहाँ नंबर 1 पॉइंट आ रहा है,
इस पॉइंट पे नंबर 2 पॉइंट आ रहा है और इसके बाद नंबर 3 आ रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो बताइए क्या ये ग्राफ और डायग्राम सभी बच्चों को समझ में आ गया? लेट मी नो। Is there anyone who need a repeated explanation of this part? Ma'am, second point and third point. सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट दोबारा समझाऊं? बिल्कुल, डायग्राम दोबारा बना के बताऊं? आप सब मेरे No, साथ ma'am, साथ no, ma'am. बताइए। मैम ऐसे ही बता दो मैम। चलो ऐसे ही बता देते हैं। एक बार मैं डायग्राम भी बना देती हूँ, कोई अगर रह गया हो तो। सभी बच्चे मेरे साथ पेयर रजिस्टर में बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखिए बेटा, अच्छा जब भी पीरियोडिक टेस्ट होंगे तो ये वाला रिटर्न में आएगा, ये वाला चैप्टर आपके। हैव अ लुक एवरीवन। सबसे पहले 2 ब्लैंक ग्राफ्स बनाने हैं। एक थोड़ा छोटा नेगेटिव में भी लेके जाना है जिसको आपको, और उसके नीचे थोड़ा सा कंपैरेटिवली बिगर, क्योंकि टीयू की वैल्यूज कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। आपको वैल्यू प्लॉट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है? बिना वैल्यूज प्लॉट किए भी हम डायग्राम बना सकते हैं, हमें तो लॉजिक पता होना चाहिए। यहाँ ऊपर वाले में आई हैव टेकन मार्जिनल यूटिलिटी एंड हियर आई हैव टेकन टोटल यूटिलिटी। मेरी स्क्रीन के स्पेस के अकॉर्डिंग मैं मेंशन कर रही हूँ चीजें। आगे देखिए बेटा। Now I know the behavior of MU. I know that MU initially decreases, then it becomes 0 and then it becomes negative. तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन कर दी है डाउनवर्ड मूविंग, जो बता रही है जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हुई MU डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते होते 0 हुआ और 0 के बाद में नेगेटिव हुआ। Now have a look everyone, क्या करना है आपको? नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से जहाँ MU 0 है, यहाँ से आपको स्ट्रेट डॉटेड लाइन बनानी है, बस यहीं तक बनानी है, टीयू के ऊपर ऊपर तक ही। और अब मुझे क्या करना है? टोटल यूटिलिटी कर्व स्टार्ट करना है फ्रॉम द ओरिजिन। कर्व की फॉर्म में स्टार्ट करना है, स्ट्रेट लाइन में। मैंने एक कर्व बनाया पहाड़ जैसा, है ना, बेल शेप। यहाँ आके रुक गई जहां मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है, और इसके बाद में मैंने इसको डिक्रीज कर दिया। नाउ इट इज शोइंग मी 3 डिफरेंट थिंग्स। क्या बता रहा है ये डायग्राम मुझे? नंबर 1 डायग्राम बता रहा है कि व्हेन MU इज फॉलिंग, ये देखिए MU डिक्रीज हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुआ। जब MU 0 हुआ तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया, और जैसे ही MU नेगेटिव हुआ टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इज इट ओके टू ईच एंड एवरीवन? मैम हाँ जी, मैम अगर मैम हमको टेबल में दिया हुआ होगा तो फिर मैम हमको नंबर्स डाल के करना पड़ेगा ना? बिल्कुल, बट ऐसा दिया नहीं जाएगा। अगर दिया हुआ होगा तो जो भी वैल्यूज है आप नंबर डाल के इसको कर लीजिए, बट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वैल्यूज किसी पर्टिकुलर टेबल का मल्टीपल नहीं होती है ना, फ्रैक्शंस में भी हो सकती है। तो ऐसे में आपको सिर्फ लॉजिकली ऐसा ही डायग्राम बनाना है। अगर आपने इस पे प्रॉपर प्लॉटिंग कर दी, जैसे आपने यहाँ लिख दिया ये कुछ इस तरीके से, फॉलिंग MU, फिर यहाँ लिख दिया MU इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ लिख दिया नेगेटिव MU, और यहाँ लिख दिया राइजिंग TU, फिर यहाँ लिख दिया मैक्सिमम TU, और यहाँ लिख दिया फॉलिंग TU। यू विल गेट फुल मार्क्स, 100% फुल मार्क्स। कहीं भी आपका आधा नंबर भी डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने अच्छे से किया तो। So have a look everyone. In fair registers, you have to write the meaning of utility. Then after you have to explain these 2 parts. Before writing the meaning of utility, you have to write this part. That there are 2 approaches to measure consumer behavior. I will be sending you some notes. उससे आप help ले सकते हैं, ठीक है? Marginal utility हो गया, हमने पढ़ लिया, अच्छे से cover कर लिया है ये वाला पूरा topic. We have also discussed the total utility and marginal utility. ये रहा जो अभी हमने डायग्राम और टेबल समझी, वो ये रही बुक में। आपको जैसा मैंने बनवाया है वैसा भी बना सकते हैं, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा कर्व आप ऊपर ले रहे हैं, कौन सा नीचे ले रहे हैं, स्केल का ध्यान रखिए। यहाँ स्केल 20 से -8 तक है और यहाँ 50 तक है, तो वो हमने टेबल के अकॉर्डिंग खुद ही पिक कर लिया होगा। फिर ये 3 पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप, आप तो इजी लैंग्वेज जो मैंने बताई है, क्या बताइए? व्हेन MU इज फॉलिंग TU इंक्रीजेस बट विद द डिमिनिशिंग रेट। ये डिमिनिशिंग रेट पे फोकस करना कि TU इंक्रीज तो होता है बट जो रेट होती है इंक्रीज होने की वो डिक्रीजिंग होती है। देन TU बिकम्स मैक्सिमम व्हेन MU इज 0 एंड देन
TU starts falling when MU becomes negative. एक और बात आपको ध्यान रखनी है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, जहां MU 0 और TU मैक्सिमम होता है. This point is known as point of satiety or the stage of maximum satisfaction. ये important 1 mark क्वेश्चन है जो हमने अभी व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस नहीं किया था. ये वाला पॉइंट कौन सा जो मैंने हाईलाइट किया है, जहां MU 0 है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ सैटिटी और द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. कौन सा वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है यहाँ पे? टोटल सेटिस्फैक्शन, राइट. इसके बाद टोटल सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होने लग गया है, तो यहाँ पे ये हमने कर लिया है कवर. नाउ द लॉ ऑफ DMU, ये हमने कल पढ़ लिया था, इसको दोबारा समझा रही हूँ मैं आपको, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है भाई? ये लॉ समझिए जरा, बहुत आसान सी बात कहता है. ये लॉ कहता है कि अगर हमारी क्लास में आदित्य को रसगुल्ले बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पसंद है. पसंद है क्या आदित्य? एक्सट्रीम पसंद नहीं है मैडम. चलिए, क्या एक्सट्रीम पसंद है? सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई पसंद है? अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा. अरे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? तनिष्का को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? चलिए, कोई भी एक स्टूडेंट जल्दी से अपनी पसंद बता दीजिए, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? काजू कतली में. काजू कतली. चलिए, काजू कतली की बात करते हैं. करण वाज द फर्स्ट वन जिसने अपनी पसंद बता दी. काजू कतली की बात करते हैं. ये लॉ कहता है कि अगर करण गुप्ता को काजू कतली बहुत ज्यादा पसंद है, फिर भी सिचुएशन क्या रहेगी कि जब वो मोर एंड मोर यूनिट्स कतली की कंज्यूम करता जाएगा, तो हर एडिशनल यूनिट उसको पहले वाली यूनिट की कंपैरेटिवली कम अच्छी लगेगी. कब? अगर कंजप्शन कंटिन्यूअस हो रहा है. अगर आपकी फेवरेट चॉकलेट है किटकैट, मैंने आपको एक किटकैट दी और तुरंत आपको एक दूसरी किटकैट खाने को दी, तो सेकेंड वाली किटकैट जो है वो आपको फर्स्ट के कंपैरेटिवली कम अच्छी लगेगी, थर्ड और कम अच्छी लगेगी, फोर्थ और कम अच्छी लगेगी. एक लेवल पे सेटिस्फैक्शन फिनिश हो जाएगा, एक लेवल पे सेटिस्फैक्शन फिनिश हो जाएगा, और एक लेवल पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव भी हो, वॉमिट भी आ जाए. तो करण, वॉमिट आ सकती है क्या अगर मैंने आपको एक साथ 15-20 काजू कतली खिला दी तो? यस मैम. बिल्कुल आ सकती है, राइट. फेवरेट चीज में भी एप्लीकेबल है. तो लैंग्वेज समझिए. The law of DMU states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, बात बहुत इजी. यूटिलिटी डिराइव्ड का मतलब है सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव. सक्सेसिव वर्ड का मतलब है एडिशनल. तो ये कह रहे हैं द सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज होता रहता है. ठीक है, तो ये लॉ बताता है कि जब आप क्वांटिटी कंज्यूम करते हो तो उसका और यूटिलिटी का कैसा रिलेशनशिप है. आपका होमवर्क है, आप पढ़ेंगे. ठीक है, सारा आप रीड करके रखेंगे. लॉ, कोई भी लॉ हम इकोनॉमिक्स में बताते हैं तो हम उस लॉ की टेबल, डायग्राम, अजम्पशन, स्टेटमेंट सब कुछ बताते हैं. इसके अजम्पशंस आपको खुद नहीं समझ आएंगे, आप मत पढ़ना. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. टेबल और डायग्राम आप पढ़ लेना. टेबल में मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग देनी है और डायग्राम में TU बनाना ही नहीं है, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी बनानी है. ठीक है, डायग्राम में आपको सिर्फ क्या बनाना है? मार्जिनल यूटिलिटी बनानी है. तो ये अच्छे से पढ़ के आना. कुछ कंडीशंस में MU इनिशियली इंक्रीज भी हो सकता है, कब होगा वो बाद में पढ़ेंगे. इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है जो बुक में नहीं दिए हुए, आप सोच के रखना. कौन सी चीज ऐसी होती है जो कितनी भी मिल जाए पेट नहीं भरता, ये आपको सोच के रखना. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में फर्दर हमारी कल की क्लास में. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ.